Hello everyone, my name is Rimpi Samria and I welcome to my channel. Today we are going to understand a story named Letters, written by Louisa May Alcott. She was an American novelist and she is best known for the novel Little Women and its sequels Little Men and Joe's Boys. Most of her stories are based on her own childhood experiences and set in Concord, Massachusetts. Now, without any delay, let's start. Dear friends, this extract has been taken from the novel Little Women, written by, as I told you, Louisa May Alcott. The story is about four sisters who live with their mother, facing life without their father as the American Civil War is underway. So, this chapter is about the time when they receive a telegram saying that their father is very ill. So, Mrs. March, the mother, she has to leave immediately and entrusts the girls to Hannah's. Hannah is the housekeeper. So, she's giving the girls to Hannah's care. The family, though in distress, is able to wade through troubled times through letters in which they pour their hearts out. So, let's start this chapter. ये एक्सट्रैक्ट एक नॉवल में से लिया गया है जिसका नाम है लिटिल विमेन और ये स्टोरी फोर सिस्टर्स के बारे में है जो अपने मदर के साथ रहती हैं और उनके फादर उनके साथ नहीं रहते क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो चल रहा है और इस चैप्टर में एक टेलीग्राम आता है जिसमें बताया गया है कि उनके फादर बहुत बीमार हैं। सो मिसेस मार्च जो कि फोर गर्ल्स की मदर हैं उन्हें इमिडिएटली उनके पास जाना पड़ता है और वो हैना जो कि हाउसकीपर है वो उनकी केयर में अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। सो इस परेशानी के माहौल में भी वो फैमिली लेटर्स के थ्रू एक दूसरे को टेलीग्राम्स लिख के लेटर्स लिख के अपने दिल में जितनी बातें हैं वो आपस में बयान करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। In the cold grey dawn, the sisters lit their lamp and read their chapter with an earnestness never felt before. For now the shadow of a real trouble had come. The little books were full of help and comfort, and as they dressed, they agreed to say goodbye cheerfully and hopefully and send their mother on her anxious journey, unsaddened by tears or complaints from them. So, इन द कोल्ड ग्रे डॉन मतलब बहुत सुबह सुबह की बात है जो कि बहुत ठंड पड़ रही है। जो सिस्टर्स हैं वो जाग चुकी हैं और वो अपनी बुक्स के चैप्टर्स को बहुत ही सीरियसनेस के साथ पढ़ रही हैं। ऐसी सीरियसनेस जो उन्हें पहले कभी नहीं शो की, क्योंकि इस ट्रबल के टाइम में, इस मुश्किल के दौर में ये जो बुक्स हैं ये उनको एक कंफर्ट देती हैं, एक आराम देती हैं। एंड एज दे ड्रेस्ड और जैसे वो तैयार हो रही थी सुबह के लिए, उन्होंने आपस में अग्री किया कि हम मदर को गुड बाय बोलेंगे बट बहुत ही चेयरफुल तरीके से, हम बिल्कुल भी सैड नहीं होंगे। और मदर को उनकी जो एंशियस जर्नी है, कौन सी जर्नी जिसमें वो मदर अपने हस्बैंड को मिलने जा रही हैं क्योंकि उनके फादर वो बीमार हैं, तो बिना आंसू बहाए हम मदर को उनके पास भेजेंगे। Nobody talked much, but as the time drew very near and they sat waiting for the carriage, Mrs. March said to the girls, who were all busied about her, one folding her shawl, another smoothing out the strings of her bonnet, a third putting on her overshoes, and a fourth fastening up her travelling bag, children, I leave you to Hannah's care and Mr. Lawrence's protection. Go on with your work as usual, for work is a blessed solace. Hope and keep busy. And whatever happens, remember that you never can be fatherless. अब जब वो अपनी मदर को भेज रहे थे अपने फादर के पास, जो कि एक लंबी जर्नी है, कोई भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। सब आपस में साथ में ही बैठे थे और कैरियज की वेट कर रहे थे जिसमें मदर ने जाना था। सो जो मिसेस मार्च थी उन्होंने गर्ल्स को कुछ कहा और उस टाइम सारी गर्ल्स बिजी थी और वो भी अपनी मदर के लिए। कोई उनकी शॉल को फोल्ड करके रख रहा था,
कोई उनके बॉनेट पे जो स्ट्रिंग्स थी उनको स्मूथ कर रहा था, और कोई उनके जो ओवर शूज़ हैं उन्हें निकाल के रख रहा था, और जो और गर्ल थी वो उनके ट्रैवलिंग बैग को पैक कर रही थी। सो मिसेस मार्च ने कहा, चिल्ड्रन, आई लीव यू टू हैनाज केयर, कि मैं तुम्हें हैना की केयर में छोड़ के जा रही हूँ। हैना उनकी हाउसकीपर थी, और मिस्टर लॉरेंस के प्रोटेक्शन के अंडर मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। जैसे घर का काम चलता है वैसे ही अपने घर का काम यूजुअली करते रहना, क्योंकि काम करते रहोगे तो तुम्हें सोलेस मिलेगी, तुम्हें पीस मिलेगा। एंड हमेशा होप बनाए रखना और बिजी रहना, और कुछ भी हो जाए हमेशा ये याद रखना कि तुम कभी भी फादरलेस नहीं होगी। नाउ द चिल्ड्रन सेड यस मदर, उन्होंने सब ने कहा जी मदर। Meg dear, be prudent, watch over your sisters. Consult Hannah, and in any perplexity, go to Mr. Lawrence. Be patient. Joe, don't get despondent or do rash things. Write to me often, and be my brave girl, ready to help and cheer all. Beth, comfort yourself with your music and be faithful to the little home duties. And you, Amy, help all you can, be obedient, and keep happy at home. We will, mother, we will. अब जाने से पहले मदर ने सबको कुछ बातें कही। सबसे पहले उन्होंने मेग अपनी डॉटर जो है उसको कहा कि तुम सेंसिबल बन के रहना, और अपनी जो बाकी बहनें हैं उनका ध्यान रखना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हैना को कंसल्ट करना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मिस्टर लॉरेंस के पास जाना। एंड बी पेशेंट जो, और जो के लिए उन्होंने कहा कि तुम हमेशा अपनी पेशेंस बनाए रखना, सब्र बनाए रखना। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करने की ज़रूरत है। हमेशा रेडी रहना दूसरों की हेल्प करने के लिए। फिर उन्होंने बेथ से कहा कि कंफर्ट योरसेल्फ विद योर म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक से खुद को कंफर्ट देना, और हमेशा फेथफुल रहना घर के कामों की तरफ, घर के ड्यूटीज़ की तरफ। और लास्ट में उन्होंने एमी से कहा कि हेल्प ऑल यू कैन, जितनी तुमसे हेल्प हो पाती है बाकी सिस्टर्स की, हैना की, उतनी हेल्प ज़रूर करना। सबका कहा मानना, बी ओबीडियंट, एंड हमेशा खुश रहना, सबको खुश रखना। और जब मदर ये बातें सुना रही थी तो सभी गर्ल्स ने कहा कि यस मदर, हम ऐसा ही करेंगे। द रैटल ऑफ एन अप्रोचिंग कैरेज मेड देम ऑल स्टार्ट एंड लिसन। अब आते हुए कैरेज को, उसकी आवाज़ सुन के सब उठ के बैठ गए। They kissed their mother quietly, clung about her tenderly, and tried to wave their hands cheerfully when she drove away. उन सब बेटियों ने अपनी मदर को किस किया, टाइटली उनको हग किया, और वेव करते हुए उन्हें गुड बाय किया। Laurie and his grandfather came over to see her off, and Mr. Brooke looked so strong, sensible, and kind that the girls christened him Mr. Greatheart on the spot. अब यहाँ पे और कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं लॉरी और उसके जो ग्रैंडफादर, वो भी मदर को बाय करने के लिए आए थे। और जो मिस्टर ब्रुक थे, दे लुक्ड सो स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल और काइंड, वो देखने में इतने स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल और काइंड लग रहे थे कि गर्ल्स ने उसी टाइम उनका नाम डाल दिया मिस्टर ग्रेट हार्ट। As she rolled away, the sun came out, and looking back, she saw it shining on the group at the gate like a good omen. और जैसे ही मिसेस मार्च वहाँ से निकली, सूरज उग गया, और जब वो पीछे की तरफ देखने लगी तो उन्हें एक ये अच्छा सन की चमकती हुई रेज उन्हें एक बहुत अच्छा शुभ ओमन की तरह लगा। And so the journey began with the good omens of sunshine, smiles and cheerful words. और इसी तरीके से मदर की जो जर्नी है वो कुछ अच्छे शुभ संकेतों के साथ शुरू हो गई, जैसे कि सनशाइन, स्माइल्स और अच्छे अच्छे वर्ड्स, cheerful words. I feel as if there had been an earthquake, said Joe, as their neighbors went home to breakfast, leaving them to rest and refresh themselves. जो ने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि अभी अभी अर्थक्वेक आया हो। और उनके जो नेबर्स थे जो मिसेस मार्च को बाय करने के लिए आए थे, वो अपने अपने घर चले गए ब्रेकफास्ट करने, और गर्ल्स को कहा कि तुम रेस्ट करो और रिफ्रेश हो जाओ। इट सीम्स एज इफ हाफ द हाउस हैज़ गॉन, एडेड मेग फॉरलॉनली। और मेग ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का आधा हिस्सा चला गया हो, एंड शी वॉज वेरी अनहैप्पी वाइल सेइंग दिस थिंग।
Beth opened her lips to say something, but could only point to the pile of nicely mended hose which lay on mother's table, showing that even her last hurried moments she had thought and worked for them. बेथ ने भी कुछ बोलने के लिए कुछ बोलना ही वो चाहती थी, पर वो इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुकी थी कि वो सिर्फ उन पाइल की तरफ, उस कपड़े के नाइसली फोल्ड किए हुए कपड़े के ढेर की तरफ पॉइंट कर पाई कि देखो, जाते जाते भी मदर ने हमारे लिए हरिडली हमारे लिए ये काम वो करके गई हैं। इट वॉज़ अ लिटिल थिंग बट इट वेंट स्ट्रेट टू देयर हार्ट्स। ये बहुत छोटा सा काम था, पर ये उनके दिल पर जाके लगा। एंड इन स्पाइट ऑफ देयर ब्रेव रेजोल्यूशंस दे ऑल ब्रोक डाउन एंड क्राइड बिटरली। और उन्होंने क्या रेजोल्यूशन लिया था कि मदर को हम चीयरफुली बाय बोलेंगे, कोई नहीं रोएगा। बट ये छोटा सा जो उनका मदर का एक प्यार भरा एक्ट था उनके लिए, ये देखकर वो सारे मिलकर रोने लग पड़े। Hannah wisely allowed them to relieve their feelings, and when the shower showed signs of clearing up, she came to the rescue, armed with a coffee pot. Hannah ने उन सबको आराम से अपनी फीलिंग्स को टीयर्स के रूप में निकलने दिया। उसने बीच में आके कुछ नहीं बोला, और जब उसे लगा कि अब ये सब रो के एकदम ठीक हो चुकी हैं, और वो एक कॉफ़ी पॉट लेकर उनके पास आ गई। Now, my dear young ladies, remember what your ma said and don't fret. Come and have a cup of coffee all round, and then let's fall to work and be a credit to the family. हैना ने सबसे कहा कि माय डियर यंग लेडीज़, ये हमेशा याद रखना कि माँ ने क्या कहा था, कि बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब मिलके कॉफ़ी पीते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी फैमिली के अंदर जो भी काम है घर के, वो सब मिलके करते हैं। Hope and keep busy. That's the motto for us. So let's see who will remember it the best. और मदर ने जैसे कहा था कि होप रखना और हमेशा बिजी रहना, ये हमारा मोटो है। देखते हैं कि कौन इस मोटो को हमेशा याद रखेगा। I shall go to Aunt March as usual. Oh, won't she lecture though? said Joe as she sipped with returning spirit. अब जो ने कहा कि मुझे आंट मार्च के पास जाना चाहिए, बट वो बहुत लेक्चर सुनाएंगी। बट शी सेड ओके, और वो अपना कॉफ़ी का सिप लेने लगी। I shall go to my kings, though I would much rather stay at home and attend to things here, said Meg, wishing she had not made her eyes so red. और मेग ने कहा कि मुझे अपने किंग्स के पास, किंग्स जहाँ पे वो एज अ गवर्नेंस काम करती थी, एक वेल्दी फैमिली थी, उनको वो किंग बुला रही है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मैं घर पे रह के ही आज घर के काम को अटेंड करती हूँ, बिकॉज उसने अपनी रो रो के अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा रेड कर लिया था। सो शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो। No need of that. Beth and I can keep the house perfectly well, put in Amy with an important air. एमी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घर पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेथ और मैं, हम लोग घर को एकदम से संभाल लेंगे। हैना विल टेल अस व्हाट टू डू एंड वी विल हैव एवरीथिंग नाइस व्हेन यू कम होम। हैना हमें बताएगी कि क्या करना है, और जब तक तुम घर वापस आओगी सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। एडेड बेथ, गेटिंग आउट हर मोप एंड डिश्ड अप विदाउट डिले। और बेथ ने ये बात जब कही, वो अपना मोप जिसे उसने पोछा लगाना था और जो डिश टब था वो बाहर निकाल के ले आई कि उसको बहुत सारे काम करने हैं। आई थिंक एंग्जाइटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑब्जर्व्ड एमी ईटिंग शुगर पेंसिवली। और एमी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी मीन्स जब आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही हो, उसने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एंग्जाइटी में जैसे कि शुगर बहुत खाई जाती है, तो शी वॉज ईटिंग शुगर पेंसिवली, मतलब बिना किसी चिंता के। सॉरी, पेंसिवली मतलब बहुत सारी चिंता के साथ। The girls couldn't help laughing and felt better for it, though Meg shook her head at the young lady who could find consolation in a sugar bowl. और गर्ल्स जो थी, ये बात सुनकर, एमी की बात सुनकर हंसने लग गई, अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रख पाई। पर जो मैग थी, वो एमी की बात सुनकर अपना सिर हिला के कहने लगी, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जब एंग्जाइटी हो शुगर खाओ तो हम ठीक हो जाते हैं। सो शी वॉज लाइक काइंड ऑफ agreeing with Amy at that time. The sight of the turnovers made Joe sober again, and when the two went out to their daily tasks, they looked sorrowfully back at the window where they were accustomed to see their mother's face. और ये जो टर्न ओवर हो रहा था, इससे जो थोड़ी सोबर हो गई थी,
मतलब वो हमेशा रैश थिंकिंग करती थी, बट इस टाइम वो एकदम शांत थी। एंड जब एंड व्हेन द टू वेंट आउट टू देयर डेली टास्क, जब दो बहनें बाहर चली गई अपने डेली टास्क के लिए, जब वो बाहर चली गई अपनी डेली टास्क के लिए, तो उन्होंने बहुत दुखी दिल से देखा कि ये वही जगह है जहाँ से हमने मदर को गुड बाय किया था। It was gone, but Beth had remembered a little household ceremony, and there she was, nodding away at them like a rosy faced mandarin. और जो बेथ थी उस टाइम उसको अपने घर के काम याद थे, और उसने बहुत ही नॉड करके, मतलब अपना सिर हिलाकर, उसने हाउस होल्ड सेरेमनी को, अपने काम को आगे बढ़ाया। न्यूज़ फ्रॉम देयर फादर कंफर्टेड द गर्ल्स वेरी मच। अब फादर की तरफ से न्यूज़ आई, कोई टेलीग्राम आया या फिर कोई लेटर आया, इससे गर्ल्स को बहुत कंफर्ट मिला, बहुत आराम मिला। फॉर दो डेंजरसली इल, द प्रेजेंस ऑफ द बेस्ट एंड द टेंडरेस्ट ऑफ नर्सेज हैड ऑलरेडी डन हिम गुड। मतलब वो काफ़ी बीमार थे, पर उस टाइम जो उनके पास नर्सेज थी और अच्छे डॉक्टर्स थे, उनकी वजह से उनकी हालत में काफ़ी सुधार था। मिस्टर ब्रूक सेंट अ बुलेटिन एवरी डे। जो मिस्टर ब्रूक थे, वो न्यूज़ की जो हेडलाइंस होती थी वो हमेशा उनको भेजते थे। एंड एज द हेड ऑफ द फैमिली, मैग इंसिस्टेड ऑन रीडिंग द डिस्पैचेस। और मैग अपने घर की हेड, उस टाइम क्योंकि मदर नहीं थे प्रेजेंट, सो अपने आप को वो घर का हेड समझती थी, और उन न्यूज़ को वो, ऑफिशियल रिपोर्ट्स को वो पढ़ के सुनाती थी। विच ग्री मोर चेयरफुल एज द वीक पास्ट। और ये चीज़ बहुत चेयरफुल होने लगी जैसे जैसे वो वीक आगे बढ़ने लगा। At first, everyone was eager to write, and plump envelopes were carefully poked into the letter box by one or other of the sisters, who felt rather important with their Washington correspondence. और हर गर्ल जो थी वो लेटर लिखने के लिए बहुत उत्सुक थी। As one of these packets contained characteristics notes from the party, we will rob an imaginary mail and read it. और वो अपने मेल्स को मेल बॉक्स में डालते थे। So here somebody has written a letter. My dearest mother. So this letter has been written by Meg. It is impossible to tell you how happy your last letter made us. आपको बताना ये बहुत मुश्किल है कि आपका लास्ट लेटर जो हमें मिला उससे हमें कितनी खुशी हुई। For the news was so good we couldn't help laughing and crying over it. क्योंकि जो आपने खबर हमें सुनाई वो बहुत अच्छी थी। How very kind Mr. Brooke is, and how fortunate that Mr. Lawrence's business detains him near you so long, since he is so useful to you and father. और मैग यहाँ पे कह रही है कि मिस्टर ब्रुक कितने काइंड है, और ये कितनी फॉर्चुनेट बात है, कितनी अच्छी बात है, किस्मती वाली बात है कि जो मिस्टर लॉरेंस हैं उनका बिजनेस भी हमारे पास ही है, जिसकी वजह से वो आपके लिए और फादर के लिए इस टाइम यूज़फुल हैं। द गर्ल्स आर ऑल एज गुड एज गोल्ड। बाकी जो गर्ल्स हैं, आपकी बच्चियां हैं, मेरी जो सिस्टर्स हैं, वो सब बिल्कुल ठीक हैं। जो हेल्प्स मी विद द स्विंग, जो मेरी हेल्प करती है सिलाई के काम में, एंड इंसिस्ट ऑन डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्ड जॉब, और इंसिस्ट करती है कि जितने मुश्किल काम है वो भी मुझे करने दो। आई शुड बी अफ्रेड शी माइट ओवर डू। और मुझे डर लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही काम ना कर दे। If I didn't know, her moral fit wouldn't last long. Beth is as regular about her task as a clock, और Beth अपने काम एकदम टाइम पे करती है, and never forgets what you told her, और जैसे आपने उनको उसको समझाया था वो कभी वो बात नहीं भूलती है। She grieves about father and looks sober except when she is at her little piano. और वो फादर के बारे में सोच के थोड़ा सा दुख करती है, पर जब वो, और बाकी वो सोबर लगती है, ज़्यादा रैश थिंकिंग नहीं करती है, और जब अपने लिटिल पियानो के पास होती है फिर वो थोड़ी सी रैश हो जाती है। एमी माइंड्स मी नाइसली एंड आई टेक केयर ऑफ हर। एमी मेरी सारी बातें मानती है और मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। शी डज़ हर ओन हेयर, वो अपने बाल खुद बनाती है। एंड आई एम टीचिंग हर टू मेक बटन होल्स एंड मेंड हर स्टॉकिंग्स, और मैं उसे सिखा रही हूँ कि अपने शर्ट्स पे बटन्स के होल्स कैसे सीव करने होते हैं, सिलने होते हैं, और अपनी स्टॉकिंग्स को खुद कैसे हम मेंड कर सकते हैं। शी ट्राइज़ वेरी हार्ड एंड आई नो यू विल बी प्लीज्ड विद हर इम्प्रूवमेंट व्हेन यू कम। और वो बहुत ट्राई करती है जो भी मैं उसे सिखाती हूँ, और आप उसकी इम्प्रूवमेंट को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाओगे। मिसेस लॉरेंस वॉचेज ओवर अस लाइक अ मदरली ओल्ड हैन। और जो मिसेस लॉरेंस है वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं जैसे कि कोई मदरली ओल्ड हैन हो। एज जो सेज एंड लॉरी इज़ वेरी काइंड एंड नेबरली। जो कहती है कि लॉरी बहुत ही काइंड है और बहुत नेबरली है। ही एंड जो कीप्स अस मैरी। वो और जो हमें बहुत खुश रखते हैं।
फॉर वी गेट प्रिटी ब्लू समटाइम्स, कई बार हम थोड़े निराश हो जाते हैं, एंड फील लाइक ऑर्फन्स, और ऐसा लगता है कि हम ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, ना मदर है पास में ना फादर है, विद यू सो फार अवे। हैना इज़ अ परफेक्ट सेंट, हैना बहुत ही अच्छी है। शी डज़ नॉट स्कोल्ड एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं डांटती, एंड ऑलवेज कॉल्स मी मिस मार्गरेट, और वो मुझे हमेशा मिस मार्गरेट करके बुलाती हैं, विच इज़ क्वाइट प्रॉपर यू नो, एंड ट्रीट्स मी विद रिस्पेक्ट, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो ट्रीट करती है। वी आर all well and busy, but we long day and night to have you back. But हम सब ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। Give my dearest love to father and believe me ever your own Meg. और मेरा प्यार भरा मेरा बहुत सारा प्यार फादर को देना, और आपकी मैं Meg. So this is the letter written by Meg to the mother. नाउ दिस नोट प्रिटिली रिटन ऑन सेंटेड पेपर, ये नोट बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेड पेपर पे लिखा गया, वॉज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट टू द नेक्स्ट वन विच वॉज scribbled on a big sheet of thin foreign paper ornamented with blots and all manner of flourishes and curly tailed letters. ये वाला लेटर बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया था, जबकि इसके ऑपोजिट जो नेक्स्ट लेटर है, जो कि लिखा है टॉप्सी टर्वी जो ने और हैना ने, ये लेटर बहुत सुंदर तरीके से नहीं लिखा गया है। सो हेयर टॉप्सी टर्वी जो, नाउ शी इज सेइंग, माय प्रेशियस ममा, mommy, 3 cheers for dear father. Brooke was a trump to telegraph right off and let us know the minute he was better. ब्रुक ने हमें ये बता दिया था, जैसे ही फादर ठीक हुए उसने हमें टेलीग्राम भेज दिया था। I rushed up Garrett when the letter came and tried to thank God for being so good to us, but I could only cry and say, I'm glad, I'm glad. और जब मुझे पता चला फादर ठीक हो चुके हैं, मैं इतना खुश थी कि मैं सिर्फ रो पाई और सिर्फ इतना कह पाई कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। Didn't that do as well as a regular prayer? सो मदर, इफ़ आई से आई एम ग्लैड, तो ये भी तो वही हुआ ना जो हम रेगुलर प्रेयर में कहते हैं। फॉर आई फेल्ट अ ग्रेट मैनी प्रेयर इन हार्ट, क्योंकि ये बोलते टाइम मैंने अपने हार्ट में जाने कितनी प्रेयर्स बोल दी। वी हैव सच फ़नी टाइम्स एंड नाउ आई कैन इन्जॉय देम, हमने बहुत फ़नी टाइम्स गुजारे और वो फ़नी टाइम्स अब मैं इन्जॉय कर सकती हूँ। फॉर एवरी वन इज़ सो डेस्परेटली गुड, हर कोई यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। इट्स लाइक लिविंग इन अ नेस्ट ऑफ टर्टल डव्स, ऐसे लग रहा है कि हम टर्टल डव्स के बीच में रहते हैं। You would laugh to see Meg head the table and try to be motherish. आप देखोगे ना, मैग बिल्कुल आपकी तरह बिहेव करती है और आप ये देख कर बहुत हंसोगे। She gets prettier every day. वो हर दिन सुंदर होती जा रही है, and I'm in love with her sometimes. The children are regular archangels, और बाकी बच्चे भी एकदम एंजल की तरह परफेक्ट हैं। And I, well I'm Joe and never shall be anything else, और आपको तो मेरा पता ही है। ओह, आई मस्ट टेल यू दैट आई केम नियर हैविंग अ क्वेरल विद लॉरी। मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि मेरी लॉरी से लड़ाई होते होते रह गई। आई फ्रीड माई माइंड अबाउट अ सिली लिटिल थिंग एंड ही वॉज ऑफेंडेड। मैंने छोटी सी कोई बात बोल दी और उसे वो बात बुरी लग गई। आई वॉज राइट बट डिडंट स्पीक एज आई ऑट एंड ही मार्च्ड होम। एंड ही मार्च्ड होम सेइंग ही वुडंट कम अगेन टिल आई बेग्ड पार्डन। और मेरी बात जो उसे बुरी लग गई, उसने कहा जब तक मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी वो वापस नहीं आएगा। लॉरी एंड आई बोथ आर सो प्राउड, इट्स हार्ड टू बेग पार्डन। हम दोनों में ही थोड़ा घमंड है और माफ़ी मांगना हम दोनों के लिए मुश्किल है। बट आई थॉट हिड कम टू मी फॉर आई वॉज इन द राइट, पर मुझे लगा कि वो ज़रूर वापस आ जाएगा क्योंकि मैं सही थी। ही डिडंट कम एंड जस्ट एट नाइट आई रिमेंबर्ड वॉट यू सेड वेन एमी फेल इन टू द रिवर। और उस रात को मुझे एक चीज़ याद आई, एक बात याद आई जो आपने हमें बताई थी जब एमी एक दिन रिवर में गिर गई थी। I read my little book, felt better, resolved not to let the sun set on my anger, and ran over to tell Laurie I was sorry. मैंने अपनी छोटी सी बुक पढ़ी और मैंने सोचा कि मैं गुस्सा होकर रात को सोने नहीं जाऊंगी, और मैं लॉरी के पास गई उसको सॉरी बोलने। आई मेट हिम एट द गेट, और मैं उसे गेट पर ही मिल गई, कमिंग फॉर द सेम थिंग, क्योंकि वो भी मुझे सॉरी बोलने आ रहा था। वी बोथ लाफ्ड, begged each other's pardon and felt all good and comfortable again. हम दोनों हंसने लगे, हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और फिर से हम कंफर्टेबल हो गए। आपकी टॉप्सी टर्वी जो। अब ये जो लास्ट लेटर है, दिस हैज़ बिन रिटन बाय हैना, जो केयर टेकर हैं। डियर मिस मार्च, I just drop a line to say we get on first rate. The goal is clever and fly round right smart. Miss Meg is going to make a proper good housekeeper.
She has the liking for it and gets the hang of things surprisingly quick. Now here, as you can see, the spellings are different because Hannah को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लिखना नहीं आता, तो उसने जिस तरीके से उसे लिखना आता है वैसे उसने मिस मार्च को ये लेटर लिखा है। और उसने बताया है कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं, और जो मैग है वो बहुत अच्छी हाउसकीपर बन जाएगी, एंड वो हर चीज़ में परफेक्ट होती जा रही है, वो हर चीज़ में क्विक है। जो does beat all for going ahead, but she don't stop to call Kate first, and you never know where she's like to bring up. She done out a tub of clothes on Monday, but she starched them afore they was wrenched and blew the pink calico dress till I thought I should a die a laughin'. Your respectful Hannah Millett. और यहाँ पे हैना जो है जो के बारे में बात बता रही है कि वो कोई भी काम करने की कोशिश करती है वो गलत हो जाता है, और वो काम जब वो करती है तो सब हंस हंस के पागल हो जाते हैं. सो दिस लेटर वॉज रिटन बाय हैना मुलेट. सो ओवरऑल फ्रेंड्स, दिस chapter tells us or gives us a message that we should love our family no matter what happens, right? As these four girls, they love each other and their parents so much. So, guys, this was our story, Letters. I hope you understood and liked it. And if you did, kindly like, subscribe, and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. Now, I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.